کہ حکومت نے کورونا ویکسینیشن کروانے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ ویکسین نہ لگوانے والوں کو دکانوں اور دفاتر اور ہوٹلز میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال پر این سی او سی متحرک ہو گئی، نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ این سی او سی نے کورونا ویکسینیشن کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ جو 31 اگست تک ویکسین نہیں لگوائے گا کام نہیں کر سکے گا۔ اسد عمر نے 2 ٹوک پیغام دے دیا، کہتے ہیں ویکسین لگوانے کا عمل آسان ترین کر دیا۔ 31 اگست سے مزید کئی سیکٹر ہیں جہاں پر یہ بندشیں لگنے جا رہی ہیں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ویکسین نہ لگوانے والے اساتذہ کے اسکولوں میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ 1 اگست سے صرف ویکسینیٹڈ لوگ فضائی سفر کر سکیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، طلبہ اور اسکول ٹرانسپورٹ عملے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی۔ 1 اگست سے صرف وہ لوگ جو کم سے کم ایک ویکسین کی ڈوز لگوا چکے ہیں صرف وہ سفر کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے جو اساتذہ ہیں جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی صحت کا ہم خطرہ نہیں لے سکتے، تو اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو 1 اگست سے آپ اسکولوں میں جا کے یا کالج کے اندر جا کے پڑھا نہیں سکتے۔ دوسری جانب پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی اسکولز 2 اگست سے کھلیں گے۔ بچے 50% حاضری کے تحت اسکول آئیں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم قدم، سرکاری دفاتر میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے اسے بچنے کے لیے ویکسینیشن مہم شروع کر رکھی ہے۔ اسی حوالے سے سول سیکریٹریٹ سمیت تمام سرکاری دفاتر میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ صرف سرٹیفکیٹ کے حامل افراد ہی سرکاری دفاتر جا سکیں گے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ایڈیشنل چیف سیکریٹریز، تمام صوبائی سیکریٹریز، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری دفاتر میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی چیکنگ یقینی بنائی جائے۔ فیصل آباد میں انسداد کورونا ویکسین کی گھر گھر مہم کا چوتھا روز، 3 دنوں میں 1,11,000 سے زائد افراد کو ویکسینیشن لگا دی گئی۔ فیصل آباد میں انسداد کورونا ویکسین مہم کا چوتھا روز، تیسرے روز 44,446 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ حکومتی ہدایت پر محکمہ صحت کی جانب سے انسداد کورونا ویکسین کی گھر گھر مہم جاری ہے۔ فیصل آباد میں ویکسین مہم چوتھے روز بھی جاری رہی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جائے۔ مہم 10 اگست تک جاری رہے گی۔ محکمہ صحت جنگ نے ضلع کے تمام ہسپتالوں اور مراکز صحت میں آنے والے مریضوں کو ویکسین لگانے کی ہدایات جاری کر دی۔ محکمہ صحت کے سی ای او ڈاکٹر سہیل اصغر نے ڈی ایچ کیو، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں، بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں آنے والے ہر مریض کو ویکسین لگانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سی ای او ہیلتھ نے بتایا کہ 16 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ سی ای او ہیلتھ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لازمی ویکسینیشن کروائیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت میٹرک کے امتحانات شروع، 1,90,034 امیدوار شرکت کر رہے ہیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت ڈویژن بھر میں میٹرک کے امتحانات شروع ہو گئے۔ امتحانات میں ڈویژن بھر سے 1,90,034 طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔ تعلیمی بورڈ نے فیصل آباد، جنگ، چنوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں میٹرک امتحانات کے لیے 558 امتحانی مراکز قائم کیے ہیں۔ مارننگ میں عربی، پولٹری فارمنگ اور ماحولیاتی مطالعہ کا پیپر لیا گیا، جس میں طلبہ کی تعداد بہت کم رہی۔ سیکنڈ ٹائم فزیکل ایجوکیشن اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا پیپر تھا، جس میں زیادہ تر طلبہ فزیکل ایجوکیشن کے تھے۔ میٹرک امتحانات میں کل 30 جولائی کو مارننگ اور ایوننگ میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر لیا جائے گا۔ امتحانی مراکز میں ایس او پیز پر عمل درآمد اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، جبکہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند ہے۔ سینٹر میں طلبہ اور نگران عملہ کے موبائل فون لے جانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ خسارے میں ڈوبے واسا کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ بے سر و سامانی نے واسا کو بیکاری بنا دیا۔ نکاسیاب کے لیے لاہور اور ملتان سے سکر اور جیٹر مشینیں منگوانا پڑ گئی۔ مونسون بارشوں کے بعد برساتی پانی کی نکاسی ممکن نہیں ہو سکی۔ ملت روڈ کے علاقہ یاسر ٹاؤن میں سیوریج کے مسائل سنگین ہو گئے۔ وکیلوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود واسا کی جانب سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ گندگی اور بدبو کے باعث سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ اس سے پہلے کا پانی جو ہے وہاں جمع ہوا ہے، گندے پانی سے ہیپاٹائٹس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہ فرسٹ ای تھی کہ جو ادا نہیں کر سکے اور گھروں میں پانی سارا داخل ہوا ہے۔ ہم اتنے پریشان ہیں کہ ایسے نلائق ایم ڈی کو جو ہے وہ معطل کیا جائے۔ نہ کوئی یہاں کا کوئی والی وارث ہے، نہ کوئی سیاسی، نہ سماجی۔ نہ نکل سکتے ہیں باہر، نہ کوئی سامان لے کر آ سکتے ہیں۔ بچے ہمارے اتنے پریشان حال میں گزرے ہیں۔ عید ہم نے اس پانی میں گزاری ہے۔ یہاں سے گزرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ویسے کولروں میں پانی ہو تو آ جاتے ہیں جی، کولروں میں پانی ہے، ڈینگی کا مسئلہ نہ بنے۔ یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ ڈینگی کتنی بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ جب تو وزیر اعظم نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تب تو وہ گھروں کو بھی صاف کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا حالات ہے یہاں کے۔
वासा बरसाती पानी की निकासी और सीवरेज के मसाइल हल करने में नाकाम हो गया। फेस्को के 80 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंडा वासा फैसलाबाद की मशीनरी भी जवाब दे गई है। कमिश्नर साकिब मीनान का कहना है कि वासा लाहौर और वासा मुल्तान से सक्कर और जेटर मशीनें पहुंच गई हैं, पानी की निकासी के लिए मुतहरक हैं, मगर आर्जी मशीनरी मसले का हल नहीं। वासा के मसाइल से हुकूमत पंजाब को भी आगाह कर दिया गया है। मैं पिछले 4-5 दिन से मैंने अपना कैंप ऑफिस वासा के दफ्तर में लगाया हुआ है और बगौर इन मामलात का मैंने जायज़ा लिया है। अब चूँकि यहाँ पर एक इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो गई, उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ वासा लाहौर का, शुक्रगुजार हूँ वासा मुल्तान का और PDMA का कि उन्होंने हमें रिसोर्सेज दिए। लेकिन ये रिसोर्सेज तो हमें उधार पे मिले हैं ना जी, हम आज नहीं तो कल 10 दिन बाद 15 दिन बाद उनकी चीज़ें उनको वापस कर देंगे। इस सूरत हाल में शहरियों का कहना है कि एक हफ्ता से जायद वक्त गुजरने के बावजूद बारिशी पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी। मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए वासा को मजबूत करने की जरूरत है। गरीब आवाम पर महंगाई के बम हमले, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 90 रुपए किलो महंगा फिर भी नायाब, शहरी हजूर के लिए खार होने लगे। झंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी, आटे और घी समेत दीगर अशियाए खोरो नोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चीनी की कीमत 68 रुपए से बढ़कर 85 रुपए किलो हो गई, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 800 से बढ़ाकर 950 रुपए कर दिया गया। 1 किलो घी की कीमत 170 रुपए से बढ़कर 260 रुपए हो गई है, जिससे शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। मैं इससे पहले भी यहाँ सौदा सलफ लेने के लिए आया था, जिसको घी बहुत अशद घर में ज़रूरत थी, चीनी की ज़रूरत थी, लेकिन उस वक़्त भी ना घी था, ना चीनी थी, ना ही दूसरी चीज़ें दस्तयाब थी। तो मुलाजमीन से पूछा तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट देगी तो हम देंगे ना। बात तो उनकी भी सच्ची थी, लेकिन लोगों को अब मैं आया, आज फिर मैं लेने आया यहाँ घी और चीनी, लेकिन यहाँ कोई चीज़ दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खोरो नोश की कीमतों में इजाफा पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। खरीदारों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाकर थक गए हैं, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि चंद रोज में तमाम अशिया नई कीमत के साथ दस्तयाब होंगी। फेस्को बिजली चोरी पर काबू पाने में नाकाम हो गया। रवा साल के पहले 5 माह में 13 करोड़ की बिजली चोरी हुई। फेस्को रिपोर्ट में हकाइक सामने आ गए। फेस्को में बिजली चोरी का सिलसिला रुक न सका। साल 2021 के पहले 5 माह में 13 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई। फेस्को की बिजली चोरी रिपोर्ट में होशरबा हकाइक सामने आ गए। बिजली चोरी के मामला पर फेस्को तर्जमान सईद रजा का कहना है कि चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बिजली चोरों को न सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं, बल्कि इनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी हो रहा है। ये बिल्कुल जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे बशीर साहब की तरफ से वाज़िया हदायत है कि बिजली चोरी के बारे में कोई भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। जो ही हमारी टीमें, जो टास्क फोर्स टीमें हैं, वो जो दिन रात ये चोरी डिटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, जब भी ये पकड़ती हैं तो उसी वक्त ही जो है FIR लॉन्च करवाई जाती है और उसके खिलाफ जो है वो डीबिल चार्ज किया जाता है। महानावार करोड़ों रुपए की बिजली चोरी फेस्को की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से बहरान पैदा होने के खदशात मंडलाने लगे। प्राइवेट कंपनीज ने सप्लाई कम कर दी। PSO की रोजाना की तलब बढ़ने लगी है। मामूल के दिनों में फैसलाबाद डिवीजन की रोजाना की तलब 10 लाख लीटर है। सदर आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन शराफत अली खटक कहते हैं, पिछले हफ्ते से तलब 15 लाख लीटर हो गई है, जिस वजह से मसाइल बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं। कीमतों में रद्दोबदल के साथ ही बहरान पैदा होगा। शराफत अली खटक का कहना है, 15 रोजा रद्दोबदल की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। कम अज कम 1 माह तक कीमतें मुस्तहकम रहनी चाहिए। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। तमाम कंपनियां जो है ना वो मार्केट से गायब हैं, जिसकी वजह से ये भी बुरान सर उठाने लगा है और हुकूमत को चाहिए कि इस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दे। ये उसी मिस मैनेजमेंट की निशानी है कि जब आप पेशकदमी के तौर पर पेट्रोल नहीं मंगवाते तो फिर आवाम को इसी तरह ज़लील ख्वार होना पड़ता है और लाइनों में लग के पैसे आपके जेब में और आपको तेल नहीं मिल रहा। एलआईडी अस्पताल फैसलाबाद में दांत निकालने से कबल मसूड़ों को सून करने वाले इंजेक्शन नायाब हो गए। मरीज इंजेक्शन प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर है। ये देखिए रिपोर्ट। रीजन का सबसे बड़ा डेंटल यूनिट मुश्किलात से दो चार है। दांत निकलवाने से कबल मसूड़ों को सुन करने वाला इंजेक्शन नायाब हो गया है, जिसके सबब मरीज ख्वार हो रहे हैं। मरीजों का कहना है कि दांत निकलवाने आए मगर इंजेक्शन बाहर से लेकर आना पड़ रहा है। हुकूमत 25 रुपये वाला इंजेक्शन भी फराहम नहीं कर सकती। त्याना रोड से आए हम, इंजेक्शन हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। हफ्ते को आई थी मैं, तो उन्होंने कहा था इंजेक्शन आप लेके आइएगा। तंग करते पे ने 30 रुपये का इंजेक्शन ही गवर्नमेंट फ्री लिया के दे सकते, तो होर इन्होंने की करना है।
इस हवाले से AMS एडमिन डॉक्टर राना बशीर का कहना है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बजट फराहम किया जाता है, ताहम इंजेक्शन खरीद कर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट मिलते ही इंजेक्शन की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। हमारा जो अपना बजट तो है नहीं, वो हमें अलाइड के MS साहब के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हमें उधर से जो भी परचेज आती है वो होती है, उसके टेंडर हो चुके हैं, उसके वो जो इंजेक्शन आए हुए हैं वो उनके DTL होना है, तो वो DTL होने के बाद फिर हमें इशू हो जाएंगे, तो ऑन करीब ये मसला हल हो जाएगा। रोजाना तकरीबन 50 से ज़ायद मरीज दांत निकलवाने के लिए डेंटल यूनिट का रुख कर रहे हैं। इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी मरीजों के साथ साथ हस्पताल अमले के लिए भी मुश्किलात का बाइस बन रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद की उलम मार्केट में सुप्रीम फॉर्म वालों की जानिब से लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का एहतमाम, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एक्सपो 30 जुलाई से 1 अगस्त तक जारी रहेगी। एक्सपो ऑर्गेनाइजर का कहना था कि तमाम तैयारियां रात 12 बजे तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। एक्सपो में 50 के करीब ब्रांड्स के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। कोशिश है शहरी एक ही छत के नीचे तमाम अशिया की खरीदारी कर सकें। हम हर साल 2 से 3 दफ़ा इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर नुमाइश है, अभी फ़िलहाल उसका ये सेटअप चल रहा है, जो उम्मीद है कि रात 12 बजे तक सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। और राइट नाउ मोर देन 50 फर्नीचर ब्रांड्स आर एग्जीबिटिंग हेयर, और इनके भी ये सभी ब्रांड्स अपने यहाँ पे स्टॉल फैब्रिकेट करवा रहे हैं और रात 12 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इनका मजीद कहना था कि एक्सपो में शहरी आराम से खरीदारी कर सकेंगे। 3 रोज तक जारी रहने वाली एक्सपो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगाई जाएगी, जिसमें शहर भर से फैमिलीज शॉपिंग की गर्ज से शिरकत करेंगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कल से इसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये एग्जीबिशन रहेगी फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मैं फैसलाबाद के लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो लाजमी इधर आएँ, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे ब्रांड इस वक्त मौजूद हैं, ये इस साल के नए डिज़ाइन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि एक्सपो का इनकाद खुशाइंद है, इससे जदीद फैशन का पता चलता है। कैमरामैन मौज़म के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। चीते पॉप का पहला मेगा पॉप विनर का ताल्लुक फैसलाबाद से। ऑफिसर कॉलोनी नंबर 2 के रिहायशी रिमशा ने 2,50,000 का इनाम जीत लिया। मुनफरिद सवालों का जवाब देकर जीतने वाली रिमशा ने इनामी रकम से पार्टी का प्लान बना लिया। नए खेले वालों का जीतने का राज भी बताया। इसी पर बात करेंगे हन्नान बुखारी से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि चीते पॉप गेम शो के हवाले से कि फैसलाबाद की रहायशी रिमशा जो है उन्होंने 2.5 लाख रुपए का मेगा पॉपअप इनाम जो है वो जीत लिया है, और काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने के बाद, और सेशन को विन करने के बाद इन्होंने ये इनाम जो है वो जीता है। बहुत सारे कंटेस्टेंट थे वहाँ पे, लेकिन जीत जो है इनके मुकद्दर बनी। और हमारे साथ रिमशा मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। पहले तो रिमशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 2.5 लाख रुपया जनाब आपने जीत लिया है, क्या कहेंगी, क्या फील कर रही हैं? जी सर, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बीइंग अ फार्मडी स्टूडेंट हमारे पास इतना मतलब गेम शोज़ में एंटर होने का टाइम वगैरह नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हिस्सा लिया और मैंने उसको विन किया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इस गेम के हवाले से सुना कहाँ से, कैसे पता चला आपको, इस ऐप का किस तरह से पता चला? जी, हम लोग चीते ऐप तो काफ़ी देर से पूरी फैमिली हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने गेम इंट्रोड्यूस करवाई है तो वो गेम का पता मुझे मेरे भाई से चला, क्योंकि उसने सबसे पहले खेलना शुरू की थी। भाई ने नहीं कुछ विन किया? भाई और मैं दोनों खेलते हैं, हम लोग मतलब विन करते थे, कभी लूज़ कर जाते थे गेम, लेकिन करते थे वो भी विन, लेकिन 2.5 लाख का मैंने विन किया। 2.5 लाख रुपया जीतना जनाब, ये एक बड़ी मुनफरिद चीज़ है। बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, तो रिमशा से मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं। रिमशा, ये बताइएगा कि सवालात तो बहुत सारे आपसे हुए होंगे, आपको सबसे मुनफरिद सवाल कौन सा लगा, कैसा लगा आपको उनके जवाब देना, मुश्किल टास्क कहाँ पे लगा? मुश्किल टास्क एक क्वेश्चन था, मतलब हमारे माइंड में जब भी सिंध के कपड़ों के बारे में पूछा जाता है तो हमारे माइंड में फ़ौरन अजरक हमारे माइंड में आती है, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पैच वर्क के बारे में पूछा था, तो उस पर काफ़ी लोगों ने जो गेम को जो है वो लूज़ कर दिया, तो जिसका आंसर अजरक नहीं था। मैंने भी उस गेम को वहाँ पे लूज़ किया, तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन लगा, क्योंकि उसमें एक की वर्ड का यूज़ किया गया, पैच वर्क, बिकॉज अजरक इज़ अ ब्लॉक प्रिंट, तो मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा। हालांकि मैंने वहाँ पे गेम हारी, लेकिन मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा क्वेश्चन, और ऐसी चीज़ों से आपका नॉलेज जो है वो भी बड़ा बढ़ता है। तो रिमशा, ये बताइएगा 2.5 लाख रुपया जीत लिया आपने, प्लानिंग्स भी होंगी कुछ खरीदारी के लिए, किस तरह से खर्च करेंगे ये पैसे? प्लानिंग्स, पहले तो काफ़ी लोगों को ट्रीट्स लेनी है, उस चीज़ को क्लियर करना है, उसके बाद प्लानिंग, मेरी तो प्लानिंग फ़िलहाल घूमने फिरने की है,
बाकी देखें फैमिली क्या कहती है, फैमिली शायद उनकी अपनी कोई प्लानिंग्स हों इसको कहीं मतलब कि यूटिलाइज करने की, लेकिन मेरी जो प्लानिंग है वो घूमने फिरने की जनाब प्लानिंग्स हैं और जो पैसे जीते हैं अब मौज मस्ती में उड़ाने भी हैं। तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। ये बताइएगा, आपने तो इनाम जीत लिया, पैसे भी कमा लिए, आप ऐसे लोगों के लिए जो कि मजीद पैसे जीतना चाहते हैं इस गेम के जरिए, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें पहली तो बात ये, क्योंकि मैं भी 2 महीने से तकरीबन खेल रही हूँ, तो आप इसको खेलते रहें। और दूसरी बात ये कि आप लाइफ लाइन्स का यूज़ करें। लाइफ लाइन्स यूज़ करने के लिए आपके लिए 2 ऑप्शन हैं कि आप चीते ऐप से ज़्यादा ऑर्डर करवाएं, और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को चीते पॉप जो गेम ऐप है उसको रेफ़र करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ लाइन्स हासिल करें। उसके अलावा आप इनके पेजेस को, चीते पॉप के पेजेस को, चीते के पेजेस को रेगुलरली विजिट करें, क्योंकि उस पर ये लोग पॉप टेस्टिक फैक्ट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। एक क्वेश्चन वहाँ से लाजम आता है, तो उन चीज़ों को आप जो हैं वो देखें लाजम, और लाइफ लाइन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करें और उनको यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल जनाब, ये थी एक्सपर्ट ओपिनियन, और रिमशा की तरफ से बताया जा रहा था कि जनाब आप किस तरह से पैसे जीत सकते हैं। तो आप बिना किसी देर के जो गेम के अंदर हिस्सा बने और मुख्तलिफ सवालों के जवाब दें, और इसके साथ साथ जो ओपिनियंस दिए गए हैं रिमशा की तरफ से उन्हें मद्देनजर रखते हुए खेलें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने की। ताकत के जोर पर अपने नजरियात दूसरों पर मुसल्लत करना गैर कानूनी और गैर शरई अमल है। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब और मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि दुश्मनाने पाकिस्तान की इंतशार फैलाने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के चेयरमैन और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा ताहिरुल हसन, मुफ्ती ज़ियाब मदनी समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था, तमाम मुक़द्दस शख्सियात हमारे सर का ताज हैं। पूरी कौम मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद है, मगर हमारे दुश्मन मज़मूम साजिशें कर रहे हैं जो नाकाम होंगी। बिफज़लिल्लाहि तबारक व तआला, हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मुहर्रमुल हराम अमन व अमान से गुजरेगा, और वो जो साजिशें करने वाले हैं, जिन्होंने लाहौर में साजिश की, जिन्होंने दासू में साजिश की, आप जानते हैं हमारे पंजाब पुलिस, हमारी CTD, हमारे मुल्क के सलामती के इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। हम तमाम उलमा उन्हें तहसीन करते हैं कि उन्होंने जिस अंदाज से लाहौर के केस को हल किया है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था, मौजूदा हुकूमत के दौर में इस्लामी दुनिया और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब दुख सुख के साथी हैं। कुवैत का वीजा बहाल हो चुका है। बहुत जल्द सऊदी क़यादत पाकिस्तान का दौरा करेगी। 11 साल बाद कुवैत से वीजे बहाल हुए हैं। कुवैती वजीर खारजा यहाँ तशरीफ लाए हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे जो हमारे इस्लामी अरब ममालिक हैं उनके ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अभी सऊदी अरब के वजीर खारजा पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने खुद कहा कि हम ताल्लुकात के बेहतरीन दौर में हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी का मजीद कहना था, इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल पर पूरी कौम दुख और गम में मुब्तला है। वजीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम करवाएं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।